students, in this chapter, we will cover the time period from First World War up to independence of India. It means in this chapter, you have to learn years and some important national movements that were initiated by Mahatma Gandhi. And in this chapter is related to our Indian history, and the time period it will cover from First World War to independence means 1947. ठीक है बेटा? And nationalism in India. This chapter is related with the feelings of Indians as they struggled a lot. They were exploited by the Britishers, and they raised their voice against them and got independence. Earlier in 8th class, maybe you have read about the revolt of 1857. That was first war of independence. But that revolt was not successful. That was failed. And after some years, means again many people they got united themselves and they led struggle. They participated in the national movement struggle, and with this we can say that we got independence on 15 August 1947 from the colonial rule. And here I am using the word colonial rule. What is the meaning of colonial? Colonial means when any country is controlled by any other country physically, or we can say boundaries have been controlled, like Britain control India, the boundaries of India. And at that time in India was the colonial rule, because India was the colony of the Britishers, and that's why we can say that at that time India was the under the colonial rule. What you know, in our country, nationalism, the feeling of nationalism came through the anti colonial feeling. Anti colonial का मतलब क्या होता है? When many countries they face problem in by the foreign rule, by the colonial rule, and they struggled a lot. They took participation in different kind of movements, and they got independence one by one. India is also the example of one country. फीलिंग ऑफ एंटी कॉलोनियल, एंटी कॉलोनियल का मतलब क्या होता है कि जब लोग कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट हो जाते हैं, जब उनको पता है कि उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, फॉरेन रूल उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है, वेस्टर्न कल्चर उनके ऊपर इम्पोज किया जा रहा था. सो एट दैट टाइम मैनी पीपल दे अपोज ब्रिटिश रूल, दे अपोज colonial rule by their own method. Some adopted violent method, some adopted non-violent method. ठीक है? What in this chapter we have to study about the non-violence adopted or satyagrah adopted by Mahatma Gandhi, and the years in which they started the satyagrah, and the movements. Mainly in this chapter, you will learn about the different movements like non-cooperation movement, civil disobedience movement, and the contribution of different leaders in the national freedom struggle. So, this chapter is very interesting from the viewpoint of Indian history, because in the first chapter you have read about the European countries and there the feeling of nationalism that was brought by the French revolutionaries. ये आपने किया है ना? But in this chapter we will learn about the history of India, the time period from First World War until independence. क्लियर? सो इसमें सबसे पहले बेटा बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आई विल ट्राई टू कवर साइड बाय साइड. ठीक है? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री में जो नेशनलिज्म है, कहीं ना कहीं ये एंटी कॉलोनियल फीलिंग के कारण आया, बिकॉज एट दैट टाइम पीपल इन देयर माइंड द सेंस ऑफ बीइंग एक्सप्लॉइटेड वाज देयर. लोगों को ये समझ आ रहा था कि उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है. ठीक है? And that's why many people they got united themselves, because Britishers they imposed Western culture on them, and this feeling provide shared bond. Shared bond means all the people they got united क्योंकि उनको connection का मतलब क्या है? They feel themselves connected because all were exploited. ठीक है? In the different parts of the country, different communities, different religious groups,
and that's why they got united themselves, and the feeling of nationalism, feeling of patriotism came into their mind, and they struggled. They, some of them, they sacrificed their life also, and in this way we can say that the people, they got independence, the feeling of nationalism came into their mind. Okay, this question is also in your back exercise. I will discuss question side by side. The question is, why growth of nationalism in the colonies is linked to an anti-colonial movement? ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि कॉलोनीज में नेशनलिज्म की फीलिंग का एक मेन रीजन क्या था? फीलिंग ऑफ एंटी कॉलोनियल। एंटी कॉलोनियल का मतलब क्या होता है? जब लोगों को लगता है कि फॉरेन कल्चर या जो गवर्नमेंट है, फॉरेन गवर्नमेंट उनके फेवर में नहीं है, तो वो लोग उनको अपोज करते हैं। दे स्टार्टेड अपोजिंग एंड दे struggled a lot, they sacrificed their life, and in this way they got freedom, and many people they sacrificed their life. ठीक है? नाउ आफ्टर दैट द सिचुएशन ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब आपको ये जो चैप्टर है वो ईयर वाइज याद रखना, ये याद रखना, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो आपको इवेंट वाइज याद रखना। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, आपने नाइन्थ में भी ये किया हुआ है। नाइन्थ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 टू 1918। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ईयर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड थे। क्या हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आसपास इंडिया में? कि लोग जो थे वो कॉलोनियल गवर्नमेंट के और ज्यादा अगेंस्ट हो गए। ठीक है, और इसमें हमने एक्सप्लॉयटेशन बतानी है, हमने इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन बतानी है। तो दैट क्वेश्चन इज आल्सो इन योर बैक एक्सरसाइज, दैट हाउ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प्ड इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म और नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। कि हम कैसे कह सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो नेशनल मूवमेंट या नेशनलिज्म या फिर एक नई इकोनॉमिक सिचुएशन या एक नई पॉलिटिकल सिचुएशन लेकर। तो क्वेश्चन, द स्टेटमेंट कैन बी चेंज, लाइक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिचुएशन, एक्सप्लेन हाउ, और इट कैन बी that how first world war created the sense of nationalism in India. So we have to explain about the condition of First World War in India. As you know, First World War was fought between Britain, France, Russia, and on the other side, Germany, Austria, Hungary, and Turkey. What India was under the control of Britain. So, on the behalf of Britain, many Indian soldiers, many Indian people, they fought on the behalf of Britain. यानी कि इंडिया उस टाइम ब्रिटेन की कॉलोनी था, तो इंडियंस को फोर्स रिक्रूट किया जाता था। फोर्स रिक्रूट का मतलब क्या होता है? जबरदस्ती उनको आर्मी में, ब्रिटेन आर्मी में भेजा जाता था, ताकि वो ब्रिटेन को रिप्रेजेंट करें। एंड मैनी सोल्जर्स, many people, they were killed in this war because they supported Britain army. ठीक है, तो हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एक न्यू एरा बताना है कि क्या हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, व्हाई मैनी इंडियंस दे वर अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल। ठीक है, फर्स्ट, अब मैंने आपको वॉर टाइम बताया, तो वॉर जो होती है तो उसमें तब क्या होता है? वॉर टाइम पीरियड में गवर्नमेंट की सारी कॉन्सेंट्रेशन जो होती है दैट इज ऑन डिफेंस एक्सपेंडिचर, और डिफेंस एक्सपेंडिचर के लिए गवर्नमेंट को मनी चाहिए लार्ज स्केल में। तो हमारा फर्स्ट हेडिंग क्या बनेगा? इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। डिफेंस एक्सपेंडिचर एक बहुत बड़ा रीजन था लोगों के माइंड में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, यानी कि कॉलोनियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट होने का। बिकॉज इन इंडिया ब्रिटिशर्स दे इंक्रीज टैक्स because they needed money for increasing defense expenditure. So that's why at that time many poor people, they were not able to pay the tax. Even farmers were there, businessmen, small businessmen, common people. They were not in condition to pay taxes to the government. But they were exploited. अगर वो टैक्स नहीं पे करते थे तो they were exploited. ठीक है, they were tortured also. And because at that time British government, they needed large sum of money to raise their funds to buy new defense equipments, guns, weapons. So that's why they needed money, and they tried to get this money from the pocket of the people. So the people, they lost confidence, they lost faith in the British government. This was the also main reason. First reason, increase in the defense expenditure. ठीक है, second,
सेकेंड हेडिंग जो आपने देना है दैट इज इंक्रीज इन द प्राइजेस ऑफ गुड्स। अब बेटा जब डिफेंस टाइम होता है, आपने रशिया में भी पढ़ा था कि जिस टाइम पीरियड में वॉर टाइम पीरियड होता है, उसमें गवर्नमेंट की सारी कंसंट्रेशन अगर वॉर में होगी तो मे बी इंडस्ट्रियल सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो कुछ देर के लिए इग्नोर हो जाता है। और एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कि अब हर तरफ जो है बम्बार्डमेंट होती है, बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, तो ऐसे में कई बार क्या होता है एग्रीकल्चर सेक्टर पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। और ड्यू टू लैक ऑफ फूड शॉर्टेज इन इंडिया, इंडिया में तो ऑलरेडी फूड शॉर्टेज थी, सो जब कंट्री में फूड शॉर्टेज होती है देन क्या होता है, दिस सिचुएशन लीड टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ मैनी असेंशियल गुड्स। ठीक है, फिर आपने बताना है दैट ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ एसेंशियल गुड्स, नेसेसिटी गुड्स, मैनी पीपल दे वर नॉट एबल टू बाय फूड ग्रेन्स फॉर देयर फैमिली। ठीक है, and common people and poor people they suffered a lot, and government was not giving any kind of help to these people। गवर्नमेंट को किसी भी तरह से कोई भी हेल्प प्रोवाइड नहीं कर रही थी। तो दैट्स वाई अगर उनकी अपनी गवर्नमेंट होती, सेल्फ गवर्नमेंट होती, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती, तो शायद उनके लिए फैसिलिटीज या कुछ जो है वो प्रॉपर जो है वो उनके लिए कुछ स्टेप्स लिए जाते, बट दिस वाज नॉट हेल्प, सो दैट्स व्हाई मैनी पीपल दे वर अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसका सेकंड हेडिंग आपने क्या बनाया, प्राइजेस ऑफ एसेंशियल गुड्स आल्सो इंक्रीज्ड। क्लियर। देन थर्ड मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया था फोर्स्ड रिक्रूटमेंट। फोर्स रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है कि ब्रिटेन आर्मी में नंबर ऑफ सोल्जर्स इंक्रीज करने के लिए दे स्टार्टेड रिक्रूटिंग इंडियन people, or even farmers and many common people, they were compelled to join the army because they needed large number of soldiers for British army, and many people were recruited in the army. Or at that time people were unemployed, they were not having any kind of employment, so they joined army। टू रीजंस वर देयर, वन दे वर फोर्स्ड, एक तो उनको फोर्स किया जा रहा था, एंड सेकंड दे वर अनएम्प्लॉयड आल्सो। पॉवर्टी एट दैट टाइम इन इंडिया वाज ऑन लार्ज स्केल बिकॉज all the resources, all the important resources were under the control of British government, and their main attitude was to earn maximum profit। और ये मैक्सिमम प्रॉफिट जो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना चाहते थे, ना कि इंडियन पीपल। So this was the reason at that time many people they were you can say recruited for the army to increase the number of soldiers। Okay, wait for 1 minute, I'm going to take your attendance। Yes, now 73 students are present। So students be regular in these 3 days because I will try to cover this chapter, clear? So first point I have discussed with you, that is increase in defense expenditure। Second point, price of important goods or necessity goods also increased, and third is force recruitment, clear? So next point is crop failure। ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बना, क्रॉप फेलियर, बिकॉज एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड वाज देयर, and weather was not according to the you can say farmers, and bad harvest years were there, and even many farmers they were not able to produce more crops। so at that time shortage of food grain was there। और उसके ऊपर एक और impact क्या पड़ा, epidemic spread। epidemic like communicable disease, जैसे आजकल के टाइम पर में कोरोना इज आल्सो communicable disease। so at that time epidemics also spread, and in this condition British government they were not coming forward to help the poor people, common people।
सो दैट्स व्हाई पीपल दे लॉस्ट फेथ। उनको ये लगा कि जो गवर्नमेंट है उनकी अपनी गवर्नमेंट नहीं है, एंड दे आर नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ कंपनसेशन और फैसिलिटीज और फाइनेंशियल काइंड ऑफ हेल्प बाय द गवर्नमेंट। सो दैट्स व्हाई दे लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, इसलिए उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट या कॉलोनियल गवर्नमेंट के ऊपर किसी भी तरह से कॉन्फिडेंस नहीं था। इसमें आप दो पॉइंट लिख सकते हो, एक तो क्रॉप फेलियर लिख सकते हो, शॉर्टेज ऑफ फूड, देन एपिडेमिक, मोर देन 13 मिलियन पीपल डाइड in this particular years from 1914 to 1918 in India. ठीक है, problem of famine was there, lack of rainfall was there. So in these particular years, government was not fulfilling the demands of common people. ठीक है, देन लास्ट में फिर आप बताओगे नो फैसिलिटीज फ्रॉम कॉलोनियल गवर्नमेंट इन एनी सेंस इन एनी काइंड। किसी भी तरह से कॉलोनियल गवर्नमेंट, लास्ट पॉइंट आप बताओगे नो फैसिलिटीज फ्रॉम कॉलोनियल गवर्नमेंट। ठीक है, किसी भी तरह से कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी वो एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी, जैसे होता है ना कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी जनरेट करती है, पुअर पीपल हैं, लाइक अगर आज की बात करें तो बिलो पॉवर्टी लाइन द पीपल हु आर लिविंग, गवर्नमेंट इज गिविंग them food at low rate other than market, rationing shops are there। ठीक है, like many policies have been started by the government to help the poor people, but at that time these were not in the introduced in the country when britishers were in our country, they were ruling। so all these conditions, all these new, ये हमने बताना है एक new economic condition, political situation। political situation क्या है, because at that time british government was controlling the india, एंड इकोनॉमिक कंडीशन आपने सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स बताने हैं, तो मतलब आपने पूरा इसको जो है वो नेगेटिव में बताना है, दैट पॉवर्टी वाज देयर, अनएम्प्लॉयमेंट वाज देयर, प्राइसेस ऑफ गुड्स आल्सो इंक्रीज, फोर्स रिक्रूटमेंट, people lost confidence in the government, so that's why they were not in the condition to have a faith on the british government। तो ये जो टाइम था ये इंडिया का टाइम मैंने बताया, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। अब 1914 टू 1918 मैंने आपको बताया, ये आपने ईयर्स याद रखने। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि इस चैप्टर में हमने महात्मा गांधी जी को इम्पोर्टेंट जो मूवमेंट्स हैं वो हमने याद रखनी। बट प्लीज रिमेंबर, ड्यूरिंग दिस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, महात्मा गांधी, when the world war started, he was not in India, he was in the South Africa, and he came in India in 1915, and with this we can say that national movement started in our country। महात्मा गांधी के इंडिया आने से हमारी कंट्री में नेशनल मूवमेंट जो है वो स्टार्ट। अब साउथ अफ्रीका, यानी कि महात्मा गांधी जो थे वो साउथ अफ्रीका में, वहाँ पे उनकी जॉब थी। ठीक है, ही वाज लॉयर, एंड एट दैट टाइम इन साउथ अफ्रीका दे आल्सो फेस्ड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, ये एक इंसिडेंट है, आपको याद होगा कि महात्मा गांधी जो थे, वंस ही वाज ट्रेवलिंग इन अ ट्रेन एंड ही हैड अ टिकट ऑफ फर्स्ट एसी, बट in spite of that he was from mixed race। mixed race मतलब जो है इंडियंस जो है उनको मिक्स रेस कहा जाता है, जो वाइट नहीं होते, जिनका कलर स्किन कलर वाइट नहीं है, एंड ही was thrown out of the train because he belonged to a इंडिया, एंड इंडिया जो है उनको लगता था कि इंडिया गुलाम कंट्री। तो महात्मा गांधी के मन में उस टाइम जो इंसिडेंट है वो इतना डीप इम्पैक्ट जो है इसका डाला कि वो अपनी कंट्री को लिबरेट करवाना चाहते थे। एंड सेकंड वाज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बिकॉज इंडियंस वर नॉट गिवन रिस्पेक्ट इन साउथ अफ्रीका, बिकॉज साउथ अफ्रीका, अपने नाइन्थ में पढ़ा है कि साउथ अफ्रीका दे वर फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ अपार्ट हीट, है ना, रेशियल सेग्रीगेशन की पॉलिसी। ठीक है, दैट्स व्हाई दे वर फेसिंग। And when Mahatma Gandhi was in South Africa, he also started सत्याग्रह। सत्याग्रह क्या होता है बच्चे, अब आपने ये याद रखना है, सत्याग्रह क्या होता है। सत्य मीन्स सच, आग्रह मीन्स फाइट फॉर ट्रुथ। सत्य के लिए आग्रह करना, किसी को सच के लिए कन्विंस करना। और यहाँ पे सच क्या था, मतलब महात्मा गांधी जो थे वो किनके साथ थे, विद द ब्लैक पीपल, विद द मिक्स रेस जो लोग थे। ठीक है, बिकॉज दे वर in favor of these people and they wanted to control, they wanted to end, they wanted to abolish the policy of racial segregation there। आपने नेल्सन मंडेला का contribution भी पढ़ा है, he also struggled a lot, he was imprisoned in jail for many years, and when he came out of the jail in the elections he won,
and his party, and he became the first president of country. ठीक है, तो ये आपने सारा 9th में पढ़ा था ना? ठीक है, तो हमने अब इसमें बताना है महात्मा गांधी जी का क्या कंट्रीब्यूशन था। ठीक है, ही आल्सो स्ट्रगल्ड अ लॉट फॉर दिस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड द ड्यूरिंग द वॉर टाइम पीरियड, अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914, ठीक है, ड्यूरिंग द वॉर टाइम पीरियड इन 1915, ये याद रखना है। ठीक है, 1 मार्क क्वेश्चन, इन 1915 ही केम इनटू इंडिया। ठीक है, और वो इंडिया आए, इनके पॉलिटिकल गुरु जो हैं वो माने जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। तो जब भी आपसे पूछा जाए हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो पॉलिटिक्स की जो नॉलेज है वो काफी हद तक महात्मा गांधी जी को उनसे मिली। ठीक है, तो अब जब वो इंडिया आए 1915, आपने बहुत इंपॉर्टेंट ईयर याद रखना है, एंड ही यू कैन से वेंट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, वो इंडिया की अलग अलग जो है वो स्टेट्स में विजिट किया उन्होंने, बिकॉज he wanted to see the economic and political condition during war time in the India, because many people they were complaining। ठीक है, बहुत से लोग कंप्लेंट कर रहे थे अगेंस्ट दिस कॉलोनियल रूल। सो महात्मा गांधी जो थे वो कंट्री की पॉलिटिकल कंडीशन और इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में जज करना चाहते थे, सो दैट्स व्हाई ही टूर उन्होंने टूर किया, अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग एरियाज में गए। ठीक है, और इसमें फिर हमने बताना है सबसे पहले सत्याग्रह का मीनिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सत्याग्रह? ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका बैक एक्सरसाइज में कवर कर रहा है बच्चे, साइड बाय साइड आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ योर बैक एक्सरसाइज एंड यू हैव टू राइट दीज आंसर्स। ठीक है, सत्याग्रह क्या होता है? सत्याग्रह इज अ नॉन वायलेंट मेथड। सबसे पहले तो ये आपने याद रखना है कि सत्याग्रह जो है वो वायलेंट नहीं है, नॉन वायलेंट मेथड ऑफ मास एजिटेशन। मास मीन्स पॉपुलेशन, नंबर ऑफ पीपल। एजिटेट का मतलब क्या होता है? जब वो अप्रेस होते हैं, जब वो अपोज करते हैं, जब वो अगेंस्ट होते हैं। नॉन वायलेंट मेथड ऑफ मास एजिटेशन अगेंस्ट ऑप्रेसर। ऑप्रेसर कौन? कॉलोनियल गवर्नमेंट। उस टाइम ऑप्रेसर कौन थे? जो एक्सप्लॉइट करते हैं, ऑप्रेसर। इट गेव इम्पोर्टेंस टू पावर ऑफ ट्रूथ, यानी कि सत्याग्रह जो है वो किसके ऊपर बेस है? पावर ऑफ ट्रूथ। सत्याग्रहीज, इसका मतलब जो सत्याग्रह लॉन्च करते थे या सत्याग्रह में पार्टिसिपेट करते थे उनको सत्याग्रहीज कहा जाता था। सत्याग्रहीज का ये मानना है कि फिजिकल फोर्स इज नॉट नेसेसरी। इनका ये मानना है कि किसी भी जो है वो एफर्ट के लिए या किसी भी काम के लिए फिजिकल फोर्स जरूरी नहीं है। ठीक है, उसके लिए क्या जरूरी है? यू कैन अपील टू द कॉन्शियस ऑफ ऑप्रेसर। ऑप्रेसर कौन? जो आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है, आप उसकी कॉन्शियस को अपील कर सकते हो। कैसे? सपोज कोई आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? आप पीसफुल जो है वो मौन व्रत या स्ट्राइक या पीसफुल जो है वो एजिटेशंस कर सकते हो। ठीक है, आप अनशन कर सकते हो। कई बार क्या होता है, भूख हड़ताल, आप कहते हो ना हंगर स्ट्राइक है, वो लोग कुछ भी खाते नहीं है, तो ये गवर्नमेंट के सामने जस्ट अपना एक जो है वो एक पॉइंट रख रहे हैं कि वी आर फेसिंग ट्रबल, सो प्लीज हेल्प अस। तो काइंड ऑफ सत्याग्रह, सत्याग्रही का ये मानना था कि ट्रुथ, पावर ऑफ ट्रुथ जो है, ठीक है, एक किसी भी प्रॉब्लम को अगर हम जीतना चाहते हैं तो उसके लिए फिजिकल फोर्स नेसेसरी नहीं है। ठीक है, जो आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है, जो अप्रेसर है, आप उसके कॉन्शियस को अपील करके भी आप नॉन वायलेंस के साथ आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। एंड नॉन वायलेंस वुड यूनाइट ऑल इंडियंस। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, उनको ये लगता था कि अगर सच की लड़ाई जीतनी है तो उसके लिए नॉन वायलेंस इज द बेस्ट मेथड। सो दैट्स व्हाई ही अडॉप्टेड सत्याग्रह, नॉन वायलेंस। एंड 1915 में वो इंडिया आए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने आते ही अलग अलग एरियाज में कुछ सत्याग्रह जो हैं वो स्टार्ट किए। हर एरिया की अपनी अपनी प्रॉब्लम थी। और ये बच्चे आपके मैप बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे, आगे जाकर इनको मैप में भी करेंगे, लेकिन 1 मार्क क्वेश्चंस के लिए आपने साइड बाय साइड लिखना है। तो आपने यहाँ पे ये लिखना है मैप बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं ये। ठीक है, साइड बाय साइड जो ईयर के क्वेश्चन है, प्लेसेस के क्वेश्चन हैं। अब सबसे पहले आपने याद रखना है कि सत्याग्रह जो था वो कौन कौन से ईयर्स और कौन कौन से प्लेसेस जो हैं वहाँ पे लॉन्च किया गया। सबसे पहले वो गए बिहार। बिहार में एक प्लेस है, उसका नाम है चंपारण। चंपारण इन बिहार। कौन से ईयर में? 1916। और यहाँ पर बहुत से प्लांटर्स, प्लांटर्स कौन होते हैं? जो प्लांटेशन में काम करते हैं, प्लांटेशन वर्कर्स। और प्लांटेशन वर्कर्स जो थे
ये इनकी मेन जो ये कौन सी क्रॉप जो है वो प्रोड्यूस करते थे, दैट वाज इंडिगो। इंडिगो क्या होता है? जो है जो क्लॉथ को डाई करने के लिए एक ब्लू कलर जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है प्लांट्स। और इंडिगो की जो बेटा कल्टीवेशन थी, दैट वाज ओनली पॉसिबल इन इंडिया, क्योंकि ब्रिटेन का जो क्लाइमेट है, यूरोप का क्लाइमेट है, दैट इज वेरी कोल्ड एंड नॉट सुटेबल फॉर इंडिगो प्लांटेशन। सो मैनी पीपल दे डिमांडेड द इंडिगो फ्रॉम इंडिया, और इसलिए यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिगो प्लांटर्स को इंसिस्ट किया टू ग्रो इंडिगो इन देयर फार्म्स। अब इंडिगो प्लांट की एक सबसे ड्रॉबैक क्या था कि कुछ इयर्स इंडिगो प्लांट करने के बाद जो लैंड थी वो बैरन हो जाती थी, बंजर हो जाती थी, उसके ऊपर आप कोई और क्रॉप जो है वो नहीं उगा सकते। सो दैट्स व्हाई मैनी इंडियन फार्मर्स वर कंपेल्ड टू ग्रो इंडिगो इन देयर फार्म्स। ठीक है, उनको कंपेल किया गया। यानी कि अगर फार्मर्स नहीं चाहते कि वो इंडिगो प्लांट करें, बट दे वर कंपेल्ड, एंड दैट्स व्हाई मैनी इंडिगो प्लांटर्स they try to get solve their problems by their own way. And when Mahatma Gandhi met with them, then they told their problem to them, उन्होंने अपनी problems उनको बताई। And that's why in Champaran in Bihar in 1916, इंडिगो प्लांटर सत्याग्रह, इंडिगो प्लांटर सत्याग्रह आपने ऐसे याद रखना है, वो स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी। अपनी डिमांड्स को कैसे ब्रिटिशर्स के सामने रखना है, ये उन्होंने सिखाया कि उनकी डिमांड्स क्या थी। ठीक है, क्योंकि दे वर फेसिंग अ प्रॉब्लम। सो दैट्स व्हाई एट दैट टाइम मैनी पीपल दे पार्टिसिपेटेड विद महात्मा गांधी इन दिस सत्याग्रह। उसके बाद नेक्स्ट ईयर 1917, ठीक है, 1915 में महात्मा गांधी ही केम इन इंडिया, 1916 चंपारण इन बिहार, 1917 खेड़ा, KHEDA, खेड़ा इन गुजरात। महात्मा गांधी ही स्टार्टेड सेकेंड सत्याग्रह इन इंडिया इन खेड़ा इन गुजरात। अब खेड़ा जो था वहां पे क्या प्रॉब्लम थी, पीजेंट्स दे वर फेसिंग प्रॉब्लम। लाइक आज के टाइम पर में आप देख रहे हो कि पीजेंट्स दे आर आल्सो फार्मर्स, दे आर फेसिंग प्रॉब्लम। सो farmers they participated in different movements, and many people they supported them even from foreign countries also. So at that time also in Gujarat in Kheda, many peasants and farmers they were facing problem regarding their land revenue. So at that they had to pay huge revenue to the government. सो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को रेवेन्यू जो है वो नहीं देना चाहते थे। सो दैट्स वाई, या कम करवाना चाहते थे, दैट्स वाई ही मेट विद गांधी जी। एंड महात्मा गांधी जी जो थे उन्होंने इनकी प्रॉब्लम्स को सुना, और खेड़ा, खेड़ा में पीजेंट सत्याग्रह, पीजेंट सत्याग्रह जो है वो लॉन्च किया इन 1917, एंड मैनी पीजेंट्स दे सपोर्टेड महात्मा गांधी। उन्होंने महात्मा गांधी की लीडरशिप में सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया। देन नेक्स्ट थर्ड सत्याग्रह आपने याद रखना है अहमदाबाद इन गुजरात। अहमदाबाद जो है वो भी गुजरात में, चंपारण जो है वो बिहार में है, खेड़ा इन गुजरात एंड अहमदाबाद इन गुजरात। अब अहमदाबाद में क्या प्रॉब्लम थी, अहमदाबाद जो है दिस सिटी इज नोन फॉर मिल्स। तो मिल्स यहाँ पे मतलब जो थ्रेड मिल्स जो हैं, या फिर क्लोथ प्रोडक्शन के लिए बहुत फेमस है, कॉटन, स्पेशली फॉर कॉटन। तो यहाँ पे मिल वर्कर्स जो थे, जो मिल में काम करते थे, दे वर नॉट पेइंग salaries properly, wages were not proper, because at that time the war time period was there. So in the country, मैंने आपको पहले ही बताया कि गवर्नमेंट जो है वो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर को टोटली नेग्लेक्ट कर रही थी। ठीक है, सो दिस वाज द problem faced by cotton mill workers in Ahmedabad. They were not given salaries, they were not given प्रॉपर अलाउंसेस। सो दैट्स व्हाई महात्मा गांधी जो थे उन्होंने इनको सपोर्ट किया, एंड कॉटन मिल वर्कर्स के साथ मिलकर उन्होंने सत्याग्रह लॉन्च किया इन अहमदाबाद इन 1918। अब आपने ईयर फिर से याद रखने हैं, 1915 महात्मा गांधी केम इन इंडिया, 1916 चंपारण बिहार इंडिगो प्लांटर मूवमेंट वाज स्टार्टेड, 1917 खेड़ा इन गुजरात पीजेंट सत्याग्रह, एंड 1918 कॉटन मिल वर्कर्स जो थे उनकी डिमांड्स को देखते हुए महात्मा गांधी जी ने इनको सपोर्ट किया, एंड सत्याग्रह वर लॉन्च। सो ये पूरा आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सत्याग्रह, एंड एक्सप्लेन ऑल द सत्याग्रह लॉन्च बाय महात्मा गांधी इन इंडिया। ठीक है, तो ये सत्याग्रह जो थे कुछ देर स्टार्ट हुए, उसके बाद फिर, बट एट दैट टाइम हम ये कह सकते हैं इन द एंड colonial government was there. So in the in the short we can say that the people
देयर प्रॉब्लम्स वर नॉट सॉल्व्ड, ठीक है, बिकॉज उनकी अपनी गवर्नमेंट होती तो उनको ये होता है कि हाँ जी इलेक्शंस में जीतना है, तो वो कुछ उनके उनके लिए करते, बट एट दैट टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज देयर, तो उनकी अटेंशन के ऊपर बिल्कुल भी जो है वो जो है वो कंसंट्रेशन गवर्नमेंट का नहीं था, बिकॉज ऑलरेडी दिस पीरियड वाज अ वॉर पीरियड था, ठीक है। तो ये सारा हमने मतलब इसमें चैप्टर में मैंने अब कवर किया आपको बेटा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1940 1918 कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन आई हैव डिस्कस विद यू। Then Satyagraha, meaning of Satyagraha and different Satyagrahas launched by Mahatma Gandhi, Champaran in Bihar, Kheda in Gujarat and Ahmedabad cotton mill workers। तो ये मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आपको कई बार आ सकते हैं। सपोज अगर प्लेस नहीं पूछा, आपको ये पूछा जा सकता है द प्लेस एसोसिएटेड विद द इंडिगो प्लांटर मूवमेंट, तो आपने मैप में कौन सा प्लेस मार्क करना है, चंपारण इन बिहार, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है दैट प्लेस एज मार्क एंड लोकेट द प्लेस रिलेटेड विद द पीजेंट सत्याग्रह, तो आपको पता है पीजेंट सत्याग्रह कहाँ पे लॉन्च किया, खेड़ा, तो आपको खेड़ा पे मार्क करना है। मार्क द प्लेस रिलेटेड टू कॉटन मिल वर्कर्स एंड सत्याग्रह, तो आपको पता ही है हमने अहमदाबाद, तो ये मेन 3 सत्याग्रह जो है वो मैप बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं आपके। क्लियर बेटा?